Hi students, good morning once again. And without wasting time, let's once again start a question on electrostatics. Sir, इतने क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, इतना क्यों डीप में जा रहे हो? Issue is that these numericals, and out of these numerical, almost one numerical is a sure short question जो कि exam में normally आता है. And I do not want my students to miss on to this kind of silly questions. They are very simple to be done. Okay. Now, till now we have done Coulomb's law and we have done the quantization of charge and we have also done the superposition of charges. And these are the question on superposition of charges. Now, the question is something like that. तो मैंने वो question लिखा नहीं है. It's unnecessary बड़ा. It's like a 2-minute answer. There is this equilateral triangle. Equilateral triangle मतलब तीनों के एंगल सेम है. मैंने तीनों पे सिंगल डैश मार्क किया है, which shows that तीनों के एंगल सेम है. तीनों का लेंथ क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों के डिस्टेंसेस सेम है, which is 5 सेंटीमीटर. रिमेंबर, सेंटीमीटर इज नॉट अ एसआई यूनिट, so you need to convert this. Plus 10 microcoulomb, you already know the meaning of the word micro. Micro means 10 to the power minus 6 and minus 10. Now ये क्वेश्चन अब समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों डाला है, क्योंकि एक तरफ प्लस चार्ज है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है. So let's mark this point as A, B and C. Now A point पे आपको नेट रिजल्टेंट चार्ज निकालना है. A point पर नेट रिजल्टेंट चार्ज निकालना है. अब A point पे कौन कौन धक्का मार रहा होगा? B मार रहा होगा और C मार रहा होगा. First of all, let's understand the figure. So यदि A पर B इम्पैक्ट कर रहा होगा तो F force on A due to B, force on A due to B, FAB should be equals to, क्या लगता है क्या हो जाएगा? ये पार्ट इसको धक्का मार रहा होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो बड़ा वाला चार्ज ये है, ये उसको रेपेल करेगा. किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. गाइस, जो आपको अभी ये सिंपल मजाक लग रहा है कि सर ये तो मालूम ही है हमें, बिलीव मी इट इज टफ टू अंडरस्टैंड. सो प्लस 10 ज्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड है, तो ये प्लस 5 को वहां धक्का मारेगा. अब आते हैं दोबारा से. एफ ए बी शुड बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. गाइस, वंस अगेन मैंने लास्ट वीडियो में कमेंट डाला था लास्ट में, विच वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स टोल्ड अस दैट सर आपने वहां पे गलती करी है. बट खैर, तो उसने मुझे बताया था बाय द वे ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप चैट, एंड देन शी टोल्ड मी दैट सर आपने 9 × 10 to the power 9 की वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं किया है. तो मैंने वो कमेंट में लिखा है द वीडियो के ड्यूरेशन में, तो प्लीज चेक इट द लास्ट वीडियो. एफ ए बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. So what is Q1? 5. What is Q2? 10. So that is यहाँ पर लिख देते हैं Q1 Q2 by R square. Let's try to find out the value of this first of all. So FAB should be equals to, this is for you, 9 into 10 to the power 9 into, what is Q1? Q1 is plus 5 microcoulombs. So it is 5 into 10 to the power minus 6 into, what is Q2? Q2 will be 10 into 10 to the power minus 6. So this will be 10 into 10 to the power minus 6. Okay, and by R square. What is R over here? What do you think R is over there? Common sense. Now R is going to be 5 centimeter. So 5 centimeter is not the SI unit, so we are going to convert it 5 into 10 to the power minus 2. Why 10 to the power minus 2? Because centi का मतलब ही होता है 10 to the power minus 2. तो 5 into 10 to the power minus 2 का whole square. Okay, let's now find out the answer. So इसका आंसर मेरे पास में आ जाएगा 9 into 5 is 45. इसको करते हैं 10 to the power 9, 10 to the power minus 6. It will become 10 to the power 3. 10 to the power 3 into 10 will become 10 to the power 4. 10 to the power 4 into 10 to the power minus 6. It will become 10 to the power minus 2. बेस सेम है, पावर्स ऐड होती जाती है. होल अपॉन 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर इज 10 टू द पावर माइनस 4. 5 5s are 25, 5 9s are 45. सो ये आ गया 9/5. ओके, तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं. 9/5, इफ यू वांट टू सॉल्व इट यू कैन. 9/5 into 10 to the power minus 4 will go at the top and it will become 10 to the power square. What? Newtons.
So this is the force which this particular guy is applying onto this at this side. Okay, now let's move on to F, force on A due to C. Once again the same formula, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Now guys, some guys, because आप में से किसी एक ने एक और गड़बड़ी किया था जिसने मुझे पर्सनल मैसेज किया था, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और एयर भी बोल सकते हो, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। इस पूरी वैल्यू को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं, कैपिटल के। तीन चीजें प्लीज ध्यान रखना। फर्स्ट, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज नोन एज के। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ऑन द अदर हैंड the value epsilon naught, एप्सिलॉन या इसको एप्सिलॉन बोल देता हूं, सो यहां पर ये वाला जो वैल्यू है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, ऑफकोर्स मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं अभी। देन कम्स एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल्स टू स्मॉल k, विच इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। सर इसमें आपने वैल्यू क्यों नहीं लिखी? क्योंकि ये वैल्यू आपको दे के रखेंगे। ओके, नाउ ओके, सो लेट्स मूव अहेड, आई एम रबिंग दिस ऑफ। ओके, सो FAC शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना आया। अब FAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू व्हाट इज Q1 इज 5 and what is Q2 is -10. So right now हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो let's take 10 और into 10 to the power -6 into 10 to the power -6। सर दो बार क्यों? S का लगाना भूल गया था तो इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। होल अपॉन बाय R स्क्वायर, R तो सेम ही रहेगा, so it is going to be 5 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर। करेक्ट? Let's now move ahead। 9 into 5 is 45। ओके, तो वापस से वही सेम 45 यही आएगा। एक्चुअली में यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑल टुगेदर। लेट्स सी, 10 टू द पावर 9 एंड इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 9 इंटू 10 विल बिकम 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर -2, तो वापस से वही आएगा इंटू 10 टू द पावर -2 होल अपॉन 25 into 10 to the power -4. So it will become once again the same part, that is 9 upon 5 into 10 का square newtons। But please remember, यदि आप ये फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हो, so this is a positive value, ये ऐसे में जा रहा था, but this has to be a negative value। या आप इसको चाहो नेगेटिव नहीं लिखना तो यहां पर अट्रैक्टिव लिख देना, अट्रैक्टिव, एंड यहां लिख देना रिपल्सिव। या फिर यदि आपको अट्रैक्टिव रिपल्सिव नहीं लिखना हो तो माइनस साइन लगा देना। क्यों? ये इसको यहां धक्का मार रहा है क्योंकि रेपेल कर रहा है, बिकॉज लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, बट अनलाइक चार्जेस +5 और -10 में बड़ा कौन सा है? -10। तो -10 इसको अपनी तरफ में खींच रहा होगा, तो इसका वाला फोर्स कहां जाएगा? कुछ ऐसे में। गॉट इट? सो ये फोर्स इसको बोल रहा है यहां जाओ, जबकि ये फोर्स इसको बोल रहा है तुम यहां आओ, तो ये कहां पर जाएगा? वी डोंट नो। तो ये इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसे में जाएगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तो आ गया आपके पास में, तो देखो ये रिपल्सिव, ये वाला अट्रैक्टिव एंड ये रिपल्सिव। आपको मालूम है एक ही घिसा पिटा फॉर्मूला है आपके पास में। सो फोर्स रिजल्टेंट शुड बी इक्वल्स टू √of F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. So what do you think the final answer should be equals to? F1 force 1 कितना आया था अपने पास में? 9/5 into 10 square. So 9/5 into 10 to the power 2 का whole square plus F2 कितना आया था? Once again the same, 9/5 into 10 square, once again whole square, and then plus 2F1 F2 cos theta।
तो F1 into F2। ध्यान रखना वो जो माइनस साइन लगाया था वो केवल हम अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए लगाते हैं, इट्स नॉट जनरली यूज्ड। ओके, सो प्लस 2, then comes F1। what is F1? 9 upon 5 into 10 square into F2 is 9 upon 5 to 10 square। now comes the most important problem students को, सर एंगल कितना लें cos थीटा पे। अब आप खुद देखो, आपको एंगल चाहिए, ये था आपके पास में F1 और ये वाला था F2, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है आई डोंट नो, बट आपको ये थ्योरम मालूम होना चाहिए दैट एन एक्सटीरियर एंगल, force between this and this, an exterior angle of a triangle will always be equal to the sum of two opposite interior angles। so 60 plus 60 will be what? 120। cos 120। did you understand this? एक बार प्लीज एक बार ढंग से एक बार देख लो दैट व्हाई दिस पर्टिकुलर एंगल इज ऑफ 120। मैंने इसका और इसका एंगल नहीं बोला, मैंने इसका और इसका एंगल नहीं बोला, मैंने इस पूरे का एंगल बोला है। सो मैं बोर्ड के एकदम साइड में हट जाता हूं सो दैट यू कैन सी द फिगर वंस अगेन। सो लेट मी नो इफ यू डू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ आगे आते हैं वापस से। सो इट शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, so what do you think, 9 upon 5 का whole square, so 9 9s is 81 by 25 into 10 to the power what? 4 plus 81 upon 25 into 10 to the power 4 plus 2 into once again 81 upon 25 into 10 to the power 4 and cos 120। cos 120 कैसे सॉल्व करोगे? cos 90 plus 30, cos 90 plus 30 is minus sin 30, तो ये आ जाएगा into minus half। okay, now deduct the values and you will get the answer, that's all। so you can now cut this particular part। 2 से आप इस 2 को कट कर सकते हो। यहाँ से यदि आपको कुछ कॉमन निकालना है तो यू कैन टेक 81 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 को आप बाहर कॉमन निकालो, तो अंडर रूट के जब बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन 5 इंटू 10 स्क्वायर, तो ये मैंने अंडर रूट के ही बाहर निकाल दिया। तो कितना आंसर आएगा आपके पास में? ये मैंने 81 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर 4 बाहर निकाला था, वो अंडर रूट के बाहर आ गया, तो ये बचेगा 1 प्लस ये वाला पार्ट भी 1 एंड देन माइनस ये वाला पार्ट भी पूरा निकल गया माइनस 1, क्योंकि करेक्ट बाकी सारा तो बाहर गया। 1 and 1 कैंसिल, अंडर रूट ऑफ 1 is 1, so answer is 5 ones are 5, 5 ones are 5, 440, 1.8 into 10 square newtons, and this is the final answer altogether। Got this? So that's all, that was simple, so simple। So ये वाला पार्ट ध्यान रखना that this will be 1.8 into 10 square newtons which is going to go in this direction। Fine, okay। Now अब बढ़ते हैं आगे with the next topic। Still if you have got some problem with any of the numerical guys, please do let me know so that I can solve that also। Okay guys, do write something in the comment for heaven's sake। Now you will say, sir, what should we write in the comment section? So I'll give a question today to you. Let's see who actually does watch this and who actually will write something over there। Okay, now let's move on to the next topic। So I'll of course put up a question। Electric field। So we have already completed our first topic of class 12th which was electrostatics का पहला वाला जो टॉपिक था वो खत्म कर लिया है, and this is the second topic of electrostats। Now what do you mean by the word electric field? यदि आपको कभी भी electric field को पहचानना है, so technically if you are talking about a charge, let's suppose there is a positive charge। Now एक मिनट के लिए इस positive charge को कुछ ऐसे छोड़ देता हूँ, something like this। इस पॉजिटिव चार्ज को कोई ना कोई कभी ना कभी तो फील कर सकता है कहीं पर, कहां तक इसकी पावर है। लेट अस से नाउ आई हैव ड्रॉन दिस, ये जो सर्कुलर वाला पार्ट बनाया है, दिस इज शोइंग व्हाट,
दैट ये इसकी रेंज है. सो द मैक्सिमम एरिया वेर यू कैन फील द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. और सिंपल वर्ड्स के अंदर सपोज कर लो कि आप अपने कोचिंग क्लास या स्कूल या जहां पर भी आप कहीं गए हो पार्टी के लिए, आप वहां पर गए, आपने पूरा टाइम स्पेंड किया एंड देन यू आर कमिंग बैक. आप पूरी मस्ती में हो, गाने वाने गा रहे हो, चिल्ला रहे हो, शोर मचा रहे हो, जो भी कर रहे हो. घर पे आने के साथ में ही आपको मालूम पड़ा डैडी ऑलरेडी घर पे ही है. नाउ विल यू शाउट इन द सेम टोन लाइक द वे यू वर शाउटिंग व्हाइल कमिंग बैक होम और व्हेन यू हैव रीच्ड होम? आई डोंट थिंक सो. क्यों? जबकि फादर ने आपको मारा नहीं है, चिल्लाया नहीं है, कुछ पूछा नहीं है, कुछ बोला नहीं है, स्टिल यू बी ओ अच्छा अच्छा. बट व्हाई आर यू क्वाइटर? यू आर क्वाइटर बिकॉज नाउ ही इज प्रेजेंट ओवर देयर एज अ चार्ज एंड उनका इन्फ्लुएंस, नॉट इन्फ्लुएंस, उनका इन्फ्लुएंस उस पर्टिकुलर रीजन तक बहुत इजीली लग रहा है, महसूस कर सकते हो. एंड दैट एरिया जहां पर मैक्सिमम रेंज होती है, जहां तक आप पकड़ सकते हो कि यस इनकी कैपेसिटी है, इनको हम फील कर सकते हैं, विल बी नोन एज इलेक्ट्रिकल फील्ड. इट्स दैट सिंपल. So how can you define the word electrical field? Electrical field is that particular surrounding area around a charge through which the electrical charge can be tested. जहां तक भी वो अपना टेस्ट देगा. ओके, ध्यान रखना यही फादर वाला एग्जाम्पल यदि मैंने ऐसे ले लिया कि यदि आप स्कूल में हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, आपको मालूम है वहां पर फादर नहीं है, तो क्या उनका इलेक्ट्रिकल फील्ड वहां तक है? होगा, बट बहुत 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 वीक. बट घर पे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इट्स लाइक द सेम थिंग. ओके, आपको क्यों लगता है कि पीटीएम के अंदर आपको अपने डैड को ले जाने में हल्का सा डर लगता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड, दैट्स सो सिंपल. दैट डजंट मीन्स विद एवरीबॉडी, but I'm saying for majority of the part. It can be mom, it can be dad, it can be grandfather, it can be grandmother, it can be any person. So what is electrical field? और ध्यान रखना ये टॉपिक इलेक्ट्रिकल फील्ड का स्टेट बोर्ड के अंदर भी है. Now, so electrical field is this particular part positive. आपने जब भी कभी कोई हिंदू रिलीजन के हिसाब से आपने या किसी भी रिलीजन के अंदर से क्रिश्चियंस और बाय द वे बुद्धिस्ट और बाय द वे मुस्लिम्स और बाय द वे एनीथिंग एट ऑल, ओके, आपने यदि इन सारे के सारे रिलीजन्स में देखा होगा तो जो भी कोई गॉड का आप एक फोटो टाइप का एक बनाते हो या जिसका भी आपने एक पिक्चर बनाया हुआ है, उनके चारों तरफ में आप एक सर्कुलर ऑरा बनाते हो. देखा है? हर एक भगवान के साइड में एक गोल टाइप का एक सर्कुलर ऑरा होता है. व्हाट डू यू थिंक दैट पर्टिकुलर सर्कुलर पार्ट इज? दैट इज शोइंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो उनके चारों तरफ में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो वो तो मालूम पड़ गया. अब पहले तो एक चीज ध्यान रखना दैट देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी आप पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहे होगे, पॉजिटिव चार्जेस हमेशा फील्ड कैसे लिबरेट करेगा? आउटवर्ड्स. आउटवर्ड्स. हमेशा फील्ड कहां जा रही होगी? आउटवर्ड्स. एंड इट विल ऑलवेज बी नॉर्मल टू द सरफेस. नॉर्मल मतलब perpendicular to the surface. So if I have got a positive charge on this board, the electrical field will be like this, like this. Got it? So it will be something like this. Okay. What do you think about the negative part? ये हर चीज को हमेशा क्या कर रहा होगा? अंदर. Everything going inside, and this will be the electrical field due to a point charge. आप चाहो तो एक curved lines मत बनाना, आप चाहो तो straight भी बना सकते हो, choice is yours. But please understand two very very important points. Positive charge हमेशा अपनी electrical field को बाहर की तरफ छोड़ता है, while negative charges हमेशा अपनी electrical field को अंदर की तरफ में ले रहे होते हैं. Now suppose करो मैंने एक positive charge और एक negative charge बना दिया. Something like this. Now what do you think? यहां से कुछ पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगे and it should be entering somewhere over here. Like this. Okay.
ऑफ कोर्स इनके सो कॉल्ड सर्कुलर लूप्स ऑल टुगेदर पूरे नहीं होते हैं, बिकॉज ये बस यहाँ से निकलता है, यहाँ पर जाके खत्म हो जाता है, निकलता है खत्म होता है। सो जब भी कभी आप दुनिया में कोई भी पॉजिटिव आदमी के साथ में खड़े होते हो या पॉजिटिव बंदे से बात कर रहे होते हो, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहा होता है, और जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं वो हमेशा सब कुछ ले रहे होते हैं, उनको बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। देखा है नेगेटिव, आप कभी भी किसी बंदे को बोलोगे ओ मुझे समझ में नहीं आया, अच्छा मैंने पढ़ाया इसलिए समझ में नहीं आया, नेगेटिव। यदि पॉजिटिव होगा, ओ ओके ठीक है मैं आपको दोबारा दे देता हूँ, ओके फाइन। यू आस्क योर मॉम, मम्मा और दे दो, शी विल ऑलवेज बी अ गिवर, ऑलवेज बी अ गिवर, नेवर एवर टेक्स एनीथिंग। व्हाट डू यू थिंक शी इज, positive or negative? Positive. And who continuously is taking? So, I'm not saying anything, you decide, so it will be a negative charge. So whenever somebody says draw a ray diagram, now guys ये very very important question है of last to last year का, draw a ray diagram depicting a combination of a positive as well as a negative charge. So positive as well as a negative charge में हमेशा electrical field of lines ऐसे निकल रहे होते हैं, ओके यहाँ से यहाँ जा रहे होते हैं, यहाँ से यहाँ पर लाइक दिस। अब जब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस थोड़ा दूर दूर में होते हैं, so see ideally they should be going something like this, बट जब ये काफी दूर दूर पे हो जाते हैं तो इट नॉर्मली फ्लोज लाइक दिस, ये ऐसे में, ये ऐसे में, ओके। So then they tend to become a bit more parallel towards each other, okay. Now let's understand first of all some few characteristics of these electrical field lines, guys. Very important topic. Electrical field की definition बहुत important है, and then comes the word the charges positive हमेशा emitting outwards, negative always inwards. पॉजिटिव हमेशा बाहर भेज रहा होगा, नेगेटिव हमेशा अंदर। सो आज के बाद में जब भी कभी आप कोई पॉजिटिव चार्ज लगाओगे, इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो देखो ये लाइंस को ऐसे भेज रहे हैं। यदि ये नेगेटिव चार्ज होता तो लाइंस ऐसे में आ रही होती हमेशा, लाइक दिस, करेक्ट। सो जब भी कभी कोई ऐसे में बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन से चार्जेस होंगे, पॉजिटिव, राइट, ओके। What do you think the first characteristic is? Electrical field lines will always be normal to the surface. So first point is always normal to surface, always, okay. Second point, from positive to negative. Third, will apply a pressure, will apply a pressure on each other. Now ये बहुत कॉमन सेंस वाला पार्ट है। Why do electrical fields of lines apply a lateral pressure on each other? Why are they always parallel to each other? Because they will always what, repel each other. क्यों? Because सारे के सारे क्या है, लाइक चार्जेस है। तो ये इसको लाइक नहीं करता, ये इसको दूर भेज के बोलता है तुम यहाँ जाओ, लेकिन ये इसको बोलता है तुम ऊपर जाओ, तो वो बेचारा ऐसे में जाता है, ये बेचारा ऐसे में जाता है, बराबर। सो दे विल ऑलवेज अप्लाई अ लेटरल प्रेशर, lateral pressure, okay, on each other. Next, very very important part, never intersect. These field lines can never ever intersect. Why do these field lines never ever intersect? You already know this. Two field lines can never intersect. तो यहाँ पर लिख देता हूँ, two field lines cannot intersect. Okay, दो field lines intersect क्यों नहीं करेंगे? Let's assume एक सेकेंड के लिए contradiction method. यदि एक फील्ड लाइन कुछ ऐसी है और एक और फील्ड लाइन कुछ ऐसी है, ये फील्ड लाइन ऐसे में जा रही है, ये फील्ड लाइन ऐसे में जा रही है, यदि इन्होंने एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, तो इसका मतलब है जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा वहां से आप एक टैंजेंट बना सकते हो, क्योंकि ये कर्व्ड लाइंस हैं। नाउ इस जगह पर देखो, यदि मेरे को यहां से एक टैंजेंट बनाना होगा तो इट विल बी लाइक दिस, यहां पर एक टैंजेंट बनाना होगा, इट विल बी लाइक दिस। इस पॉइंट पर टैंजेंट कैसे बना होगा,
दो अलग अलग टेंजेंट्स तो बन नहीं सकते, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दैट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट नो टू टेंजेंट्स कैन बी मेड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दैट दीज टू लाइंस विल नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, so that is electrical field lines will never ever intersect each other. Why? Because at the point of intersection there cannot be two tangents drawn. दो tangents बन ही नहीं सकती, इसलिए they cannot intersect each other. Okay. Now last point. At the source or near the source, field lines will be strong. Field lines will be strong. Sir, what do you mean by this? अब जितना सोर्स की तरफ में जाओगे, मोर द क्राउडेड लाइंस, यदि आप ढंग से देखो तो इस जगह पर इतने से एरिया में यहाँ से 3 लाइंस है, फिर यहाँ पर देखो तो इतने से एरिया में एक ही लाइन है. जिस जगह पर जितनी कम लाइंस होती हैं उस जगह पर इलेक्ट्रिकल फील्ड उतनी कम होती है. वीक, वीकर, वीक, स्ट्रॉन्ग. जितना आप सोर्स के पास में रहते हो उतनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हमेशा क्या करेंगी? Strong. They can be positive, they can be negative also, depending on what kind of source are you. So I always try to give some of the practical examples which some of the students might like, some of the students might not like. Understand, आपके parents, they are technically one of the best people altogether on earth. Of course, ये किसी के भी perfect नहीं होते हैं. They might be or looking some uncool kind of people. But trust me, they love you and they care about you. They'll always tell you something. हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो, बिकॉज नेगेटिव लोग के पास में जितना रहोगे उनकी इलेक्ट्रिकल फील्ड उतनी स्ट्रांग होते हैं. आप बोलोगे सर लेकिन वहां पर ह्यूमंस हैं, चार्जेस नहीं हैं. गाइस ट्रस्ट मी, इन क्लास 12 ये पूरी थ्योरी आपकी हिलने वाली है, वायलेंटली शेक होने वाली है. क्यों? आगे जाकर के जब मॉडर्न फिजिक्स चालू होगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 ऑनवर्ड्स, यू विल अंडरस्टैंड कि डुअलिटी का मतलब क्या होता है. डुअलिटी का मतलब हर एक मैटर, एंड ह्यूमन इज अ मैटर. ओके, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज गॉट मास इज मैटर. सो एनीथिंग व्हिच इज मैटर इज टेक्निकली कंप्राइजिंग ऑफ 2 थिंग्स. या तो वो वेव फॉर्म के अंदर है या वो पार्टिकल फॉर्म में है. और आप जब 7 चैप्टर पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट वो दोनों के फॉर्म में होता है, चार्जेस के अंदर भी एंड वेव फॉर्म में भी. एंड इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी, प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड. तो समझाने के लिए काफी इजी होता है, बट अदरवाइज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम दीज सॉर्ट ऑफ पीपल. नॉट गुड. आई एम नॉट गिविंग यू moral science preaching. That's what, by the way, the duality says. The more you are close with the negative people, and they are always going to teach you something which is negative in nature. So choice is yours. Okay. So let's summarize this. Electrical field lines will always be normal to surface. Electrical field lines will always move from positive towards the negative. They will always apply a lateral pressure because like charges repel each other. They will never ever intersect because at the point of intersection there cannot be 2 tangents. At the source or near the source, the field lines will very very be strong, and as soon as you are going to go furthermore away from them, it's weaker. Now guys, I do personally believe into this and I am not at all forcing you कि I'm so sorry कि आप भी इसको believe करो. But guys, if you are worshipping anybody, say आप किसी God को मान रहे हो, irrespective of caste, color, creed, gender, sex, जो भी होगा, आप किसी भी community को belong करते हो, doesn't matter. Whomsoever you are praying, believe me, those prayers are nothing else but positive charges altogether. सो जब भी कभी आप जितना सोर्स के क्लोज होते हो, जितनी आपने चीज को भगवान माना हुआ है, ऐसी नोबडी हैज सीन गॉड, बट द मटेरियल व्हिच यू आर थिंकिंग इट एज अ गॉड, जो उनकी फोटो फ्रेम है या जो पेज है जिस पे आपने उनको बनाया हुआ है, इफ यू ट्रीट दैट एज गॉड, यू आर वेरी वेरी क्लोज टू द सोर्स. और आप यदि मानते ही नहीं हो, नो प्रॉब्लम. एंड दीज फील्ड लाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे रन ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ही वो वजह है जिसकी वजह से आपके मोबाइल फोन्स बिना दिखने वाले रेज
को कैप्चर करते हैं एंड आपका सो कॉल्ड इंटरनेट चलने लगता है. व्हाट इज इंटरनेट? नथिंग एल्स बट वेव्स. व्हाट आर वेव्स? वेव इज नथिंग एल्स बट इज अ काइंड ऑफ मैटर. मैटर इज व्हाट? कंसिस्टिंग ऑफ टू काइंड ऑफ पार्टिकल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एवरीथिंग इज वेव एंड एवरीथिंग इज पार्टिकल. So everything what you are seeing is technically a kind of particle always, or a wave. Okay, so remember that part. Now coming back onto the part of electrical field, तो ये तो हो गया electrical field के कुछ parts. अब बात करते हैं guys, a very very important point I forgot. How can I forget? 6. Inside a conductor, very very important point. Inside a conductor, electrical field will always be zero. Will always be zero. कभी भी कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं रहती है, उसके केवल सरफेस पर रहेंगी, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस केवल सरफेस पर रहते हैं. और मैंने जैसे बताया जब भी चार्जेस सरफेस पर होंगे तो वो बाहर निकलेंगे ना कि अंदर जाएंगे. इट इज दैट सिंपल. So remember, they'll always be moving outwards from where they are being placed. So inside a conductor, inside, एक मान लो एक कोई आपने एक बर्तन ले लिया एक डोम के शेप का, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो. नाउ यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बन गया, ड्यूरिंग द टाइम द लाइटनिंग इज गोइंग टू स्ट्राइक यू. यदि आप कार के अंदर बैठे हो, अंदर सारी विंडो पेन्स ऊपर हैं, आपको कभी भी शॉक नहीं लग सकता, कभी भी नहीं लगेगा. यदि आपको कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट को हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से बचाना है, उसके ऊपर एक मेटल का डोम रख दो. अब आपको जितना करंट लगाना है लगा दो, अंदर का गैजेट को कुछ नहीं होगा. इट्स सिंपल. करेक्ट? ओके. नाउ अब आते हैं एक्चुअली में द वर्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड पर. सो इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम शो करते हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसको ई वेक्टर से शो करते हैं, ई से शो करते हैं. And the definition is E should be equals to F vector upon Q. So electrical field is equals to force upon charge. It's very simple. Electrical field E is equals to F upon Q. Okay. So what actually does electrical field measures then? फिर electrical field होता क्या है और अब क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में? Electrical field tells you how many or the number of lines, इलेक्ट्रिकल लाइंस कितनी सारी एक जगह से पास हो रही है. सो हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रिकल फील्ड? इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट व्हाट एरिया. ओके, कितनी एक पर्टिकुलर जगह से फील्ड लाइंस जा रही हैं. और यू कैन ऑल्सो से दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैन बी टर्म्ड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज. कितना फोर्स था कितने चार्ज के वजह से. कॉमन सेंस, ज्यादा चार्जेस होंगे ज्यादा फोर्स लगेगा, कम चार्जेस होंगे कम फोर्स लगेगा. लेट्स रैप अप दिस लेक्चर बाय गिविंग यू वन लास्ट एग्जांपल एंड यू माइट से यस. आपने कभी भी कोई मॉर्ग देखा है? MORQUE, मॉर्ग, मुर्दाघर जहां पर डेड बॉडीज को रखते हैं? नो. आपने कभी भी कोई कब्रिस्तान या सिमेटरी आपने देखा होगा? नॉट सिमेट्री, सिमेटरी. Now cemetery is those places in जहां पर आप लोगों को बरी करते हो. ओके. Now यदि मान लो मैंने आपको रात को बोला कि आप 12 बजे या 1 बजे के आसपास उस सिमेटरी या मॉर्ग में जाओ, and then you just have to come back, how will you feel? You'll say, sir मुझे डर नहीं लगता, but trust me, internally कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ discomfort तो लगेगा. I'm not saying you are scared or you are a coward. Okay, of course you might be scared, but definitely you are not a coward. Point is, वहां पर कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है which you can feel. आप जब वहां पर खड़े रहोगे आपको कुछ तो अजीब सा लग रहा होगा. पुराने जमाने में इसी को लोग डार्कनेस बोलते थे. डार्कनेस, डार्क. आज भी आप रात में कभी छत के ऊपर में जाओगे, डार्क, डार्क एनर्जी, डार्क. आजकल यही चीजें इंटरनेट पर यूज करते हैं एज अ न्यू टर्म व्हिच इज नोन एज डार्क वेब. व्हाट इज दिस डार्क वेब? डार्क वेब इज दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पर सारी इलीगल चीजें होती हैं, गलत काम होता है. सो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको ये बताता है कि किस जगह पर कितनी फील्ड है, और उसको मेजर करने का तरीका इज विद दिस फॉर्मूला व्हिच इज नोन एज E should be equals to F/Q. इसी को आप यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो F should be equals to क्या बन जाएगा फॉर्मूला? QE.
कभी कभी न्यूमेरिकल्स में जो कि आएंगे इस टॉपिक के बाद में, एफ की जगह पर आप चाहो तो mg भी डाल सकते हो. व्हाट इज दिस mg? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ. इट शुड बी इक्वल्स टू QE. Okay, that can be the formula number 3. Did you understand this? Now, what can be the unit of electrical field and the dimension formula? The unit of electrical field can be Newton per Q की unit क्या होती है? Coulomb. So this is the unit. और आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, और Newton per Coulomb. What is the dimension formula of this? Newton के लिए या force के लिए dimension formula क्या होता है? It should be equals to mLT minus 2. And what is the Q? Q के लिए क्या हो जाएगा? I should be equals to Q upon T. Correct? तो Q should be equals to what? IT. Simple. I should be equals to, याद है लास्ट टाइम में भी पढ़ा था अपन ने, I current should be equals to number of charges by time. So Q should be equals to IT. IT. और यहाँ पर मैंने कॉलम की जगह पर IT, I क्या होता है? एम्पियर, टाइम क्या होगा? T. So what is the dimension formula now? M L T minus 3 A minus 1. And that's all is the dimension formula of this part. Did you understand this? So this is known as electrical field. तो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, मैंने आपको उनके डायग्राम्स बता दिए, मैंने आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड का डेफिनेशन बता दिया, द मेजर फॉर्मूलाज जो आप यूज करोगे मैंने आपको वो बता दिया, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी वो बता दिया, एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर्थ. राइट, अब बढ़ते हैं आगे इसी पार्ट पे, एंड द लास्ट टॉपिक. सो कैन आई रब दिस? शुड आई? ओके. Okay, now the question which you have to write in the comment section if you did watch the video, and of course if you won't write, I can understand. You just simply need to tell me why sitting inside a car during a lightning storm is much more safer as compared to standing outside in the open ground. That's all. Why sitting inside a car is considered much more safer as compared to standing outside in the open ground during a lightning storm. And do not write general kahaniya, write a one-line answer. Why? Okay, I don't know, but आज के लेक्चर में उसका आंसर है. So you just need to write that one-line answer. यदि किसी ने 2 लाइन्स भी यूज करे, one-line answer. It's simple. Okay. Now, okay, आगे बढ़ते हैं. Let's move on to the next part. Guys, अभी तक आपने देखा था कि surfaces के ऊपर में ही चार्ज रहते हैं. That is what electrostatics is. Electrostatics is that branch of physics which deals with charges at rest. आज हम बात करने वाले हैं, मान लो कोई एक वायर है और ये वायर किसी एक रिजिड प्लेन से लटका हुआ है, इस पर बहुत सारे चार्जेस हैं, तो मैंने यहाँ पर चार्जेस डाल दिए लाइक दिस. अब यदि इस पर्टिकुलर जगह पर चार्जेस हैं तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? सिंस इस लेंथ को अपन मान लेते हैं L. ओके, सो यहां पर एक नई क्वांटिटी आती है विच इज नोन एज लैम्डा. लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा? बताता हूं. लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू Q अपॉन L, और इस लैम्डा को ही हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज density. So what is the formula of linear charge density? Linear charge density should be equals to Q by L और कूलम पर मीटर. इसका मतलब क्या हुआ? उस इतने से वायर पे कितने चार्जेस बैठे हुए हैं जिसके वजह से हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड मेजर करना है. So that is lambda should be equals to linear charge density. ये कंडीशन आप कब लगाओगे? जब भी कभी कोई वायर होगा तो वायर की कंडीशन में हमेशा हम लैम्डा यूज करते हैं Q की जगह पर. आप इसी को ऐसे भी देख सकते हो, और Q शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू L. Q शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू L.
यदि आपने कोई बहुत छोटा सा एरिया लेके रखा है, आपको इतने से एरिया में आपको मेजर करना है, यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन काम में आता है, तो यू आर यूजिंग गोइंग टू यूज डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डॉट डी एल। अब इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज शुड बी इक्वल्स टू, यदि आपने पूरा लंबा वायर नहीं लिया और उस वायर का एक बहुत छोटा टुकड़ा लिया है, तो नाउ यू आर गोइंग टू से डी क्यू शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा डॉट डी एल। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये अभी आगे जाके फॉर्मूलेज एंड डेरिवेशंस में यूज में आएगा। देन कमिंग ऑन टू द वर्ड, सपोज कर लो मेरे पास में कोई एक सरफेस है, रैंडम सरफेस, इस पर भी बहुत सारे चार्जेस हैं। अब क्या बोलूंगा, इसको हम लोग शो करते हैं विद द वर्ड ऑफ सिग्मा से। सिग्मा, सिग्मा लैम्डा, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आप कब लोगे, जब भी कभी कोई आप एक प्लेट की बात कर रहे होगे, एक मेटल प्लेट की बात कर रहे होगे, एक रफ सरफेस की बात कर रहे होगे, क्यू बाय ए। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ ये क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज कभी कभी चीजें वायर के फॉर्म में नहीं, प्लेट के फॉर्म में देके रखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, नाउ वंस अगेन द सेम पार्ट, तो यहां पर हो जाएगा Q शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा A और DQ शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा डॉट DA। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, कभी कभी चीजें पूरे के पूरे एक स्फीयर के ऊपर में होती हैं। अब स्फीयर ना तो एरिया होता है बिकॉज इट्स नॉट अ 2D ऑब्जेक्ट, और ना ही एक लाइन होती है विच इज अ 1D ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ। तो स्फीयर को आमतौर पे जब भी कभी हमें लेना होता है तो हम उसको किससे शो करते हैं, ईटा। ईटा, ईटा शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा वो मुझे भी नहीं मालूम है, चलो बता देता हूं। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी शुड बी इक्वल्स टू Q बाय V विच इज नोन एज ईटा, और यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब, सो इट इज कूलम पर मीटर क्यूब, ईटा। ओके, और फाइनल आंसर, और ईटा शुड बी इक्वल्स टू, और सॉरी डी ईटा, सॉरी dq should be equals to eta dot dv, and this is known as volume charge density. So this is all from my side today. Today we did quite a lot. Remember, a sheet is going to come up soon. Thank you guys once again so much. Lovely to see you again and again. See you as in when you write the answer sheets and post it to me. Thank you guys. Keep on cooperating like this, and I'm sure that we will be out of coronavirus very soon. See you guys. Enjoy and chill. Bye.